Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, subject Economics. We are in chapter number 7, the last chapter of Macroeconomics, Balance of Payment. This is the last video of this chapter, Balance of Payment, and also last video of Macroeconomics. With this video, the Macroeconomics finish with the chapter Balance of Payment. Before this video, we learned about what is balance of payment, what is the components of balance of payment, current account and capital account, and we also learned about various disequilibrium in balance of payment. And in this video, the last video of this chapter, in this video we are going to describe the significance of BOP account और BOP डाटा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का जो हम बनाते हैं अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डाटा होता है उसका महत्व क्या है। और इस वीडियो में हम इसके साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें डिफरेंस एग्जाम में आता है मोस्टली, तो इसको देखेंगे। और यही दो लास्ट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट और बीओपी डाटा में सबसे पहला है कि भुगतान संतुलन का महत्व क्या है, या उसके खाता को देखकर हम क्या समझ सकते हैं, या उसका जो डाटा होता है वो क्या इंडिकेट करता है किसी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहला है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके देश के दशा और दिशा पर निर्भर करता है। आपका विदेश व्यापार की संरचना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड is enough to reflect the all strength and weaknesses of the economy. And through balance of payment account, we became to know that in which area our economy has some strength, and in which area we are weak. And according to this, we can also enhance our domestic economy. For this, we can formulate a lot of policies and programs, how to we can accelerate our exports, and how we can manage our domestic production activities to enhance and motivate more and more exports to earn more and more foreign capital. तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, it means that balance of payment has a clear indication towards our composition, structural composition, and the economy's dependency over different sectors. अगर हमारे composition में, इंटरनेशनल ट्रेड के composition में अगर रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि स्टिल आवर इकोनॉमी वॉट डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड प्राइमरी सेक्टर। अदरवाइज अगर हमारे एक्सपोर्ट में इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्निकल और मशीनरी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा बेटर है। ऐसे अभी अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि सर्विस सेक्टर के उत्पाद ज्यादा होते हैं, और ये ज्यादा होना इकोनॉमी के डेवलपमेंट का निशानी है। तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक क्लियर आइडिया हमको बीओपी अकाउंट से मिलता है, बिकॉज बीओपी अकाउंट इज नॉट ओनली इंडिकेट द कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी and our international trade, but it also indicate that in which area of domestic economy we have to be work in coming future through various policies and programs. Second है net factor income from abroad.
net factor income, as we know that net factor income from abroad, our persons who send a remittance to their domestic economy, that were called net factor income from abroad. And it is the difference between income earned by our residents in foreign territory and foreigners in our domestic territory. And for a better economy development, net factor income from abroad should be positive, because when it is positive, it's going to be contribute in our forex, foreign exchange reserve, and foreign exchange reserve is important for any economy's health. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे में कमी है, इन सब के बारे में ये बीओपी अकाउंट जो है वो बताते हैं. क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो भी उसके अकाउंट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन होते हैं, और कैपिटल अकाउंट हम जानते हैं कि ज्यादा वाइटल होते हैं फ्रॉम करेंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में अगर डिफिसिट है तो ही बीओपी को एक्चुअली में डिफिसिट माना जाता है, और कैपिटल अकाउंट को डिफिसिट से उबारने में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. और इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक प्रॉपर आइडिया जो है वो होना चाहिए, और ये आइडिया हमको बीओपी अकाउंट से मिलता है. तो net factor income from abroad, the idea about net factor income from abroad is the most important significance of BOP account. अगला है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ए कंपोनेंट ऑफ एडी. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो एडी और एएस के आधार पर होते हैं. एडी और एएस के आधार पर होते हैं, और हम जानते हैं कि एडी बराबर सी प्लस आई होता है, और इस तरह से कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड. तो किसी भी इकोनॉमी में रोजगार के स्तर को और आय के स्तर को निर्धारण करने में समग्र मांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. देयर इज क्रूशियल रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी. और एग्रीगेट डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट हम जितना करेंगे उतना ज्यादा, यानी कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा होगा, और वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी बढ़ाएगा. तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डाटा है एज ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसका आइडिया हमको इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को स्थिर रखने और उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हमको सुविधा देता है. हमको इसके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि ये एज ए एक्सपोर्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ एडी हमको इसके बारे में बताता है, और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और उसके आधार पे हम एडी को बढ़ा सकते हैं, और एडी को बढ़ने से हमारे यहाँ आय एवं रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होगी. चौथा है मार्केट पोटेंशियल. देखिए कंपोनेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट है. इंडियन इकोनॉमी को हमने कई बार कहा है कि इंडियन इकोनॉमी को एलिफेंट इकोनॉमी कहा जाता है, जबकि यूरोपियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी ये सबको टाइगर इकोनॉमी कहा जाता है. एलिफेंट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो डोमेस्टिक डिमांड अप टू 80% इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करता है, और इसी कारण से वर्ल्ड लेवल पे या ट्रेड साइकिल वर्ल्ड लेवल पे जो चलते हैं, और उसमें जो कभी मंदी और तेजी आती है जिसके कारण विश्व के बाकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से प्रभावित होती हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं प्रभावित होती है. उसका यही कारण है कि हमारे मार्केट की पोटेंशियलिटी जो है, ये डोमेस्टिक मार्केट की पोटेंशियलिटी ये बहुत स्ट्रांग है, और डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड हमारे यहाँ क्रूशियल फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है हमारे यहाँ इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को, और देश को प्रिवेंट करने का फ्रॉम हाइपर इन्फ्लेशन और हाइपर डिफ्लेशन. इन दिस वे द BOP account also give an idea towards our market potentiality, especially our domestic market, कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका हाउ मच गोइंग टू बी एक्सपोर्ट एंड हाउ मच गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी.
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पॉलिसीज। सो मार्केट पोटेंशियलिटी जो है इसके बारे में सारा डाटा हमको बीओपी अकाउंट से मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद से मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, बीओपी अकाउंट इज नॉट ओनली इज ए फाइनेंशियल सिस्टमेटिक अकाउंट बट इट ऑल्सो गिव इनफ आइडिया or direction towards monetary and fiscal policy formulation and implementation by the government of India। हमें कैसी मौद्रिक और राजकोषीय नीति चाहिए, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में कैसे बदलाव चाहिए, इसके बारे में बीओपी अकाउंट एक क्लियर डाटा कहते हैं, क्योंकि बीओपी अकाउंट इज जस्ट अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए कंट्री। और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमें कहाँ काम करने हैं, कहाँ हमें बेटर सुधार करना है, कहाँ हमें कमी करनी है, इन सब के बारे में एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की बात होती है जब मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। तो हमें ये बीओपी अकाउंट के जो डाटा होते हैं ये बहुत हद तक हमको डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस रूप में और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में क्या जरूरी चेंजेस करने हैं। तो ये 5 आपके सिग्निफिकेंस हो गए बीओपी अकाउंट के। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में जानकारी देता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ एडी के बारे में जानकारी देता है, मार्केट पोटेंशियलिटी के बारे में बताता है और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हमें बहुत ज्यादा आइडिया और डायरेक्शन देता है। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज सम वाइटल डिफरेंसेस। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जैसे करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दो चीज है। बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल इसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं जिसमें हम केवल विजिबल आइटम्स को रखते हैं, गुड्स को रखते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ओवरऑल पेमेंट अकाउंट है, यानी उसमें हम बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज सबको रखते हैं। तो इसमें डिफरेंस को हम लोग देख लेंगे। इसमें डिफरेंस आते हैं, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये सभी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को का समरी होता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट्स ओनली, यानी ये केवल विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के का अंतर है। दूसरा है इट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विस, ये दोनों चीज को रिकॉर्ड करता है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ओनली गुड्स। तीसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इट रिकॉर्ड्स बोथ करेंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों तरह के अकाउंट को कंसीडर करता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल अकाउंट को कंसीडर नहीं करता है, कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड नहीं करता, इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। चौथा है बीओपी ऑलवेज बैलेंस प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ आरबीआई रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व इन रिफ्लेक्टेड इन इट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को चूंकि ये कैपिटल अकाउंट को भी इंक्लूड करता है और कैपिटल अकाउंट हमेशा आरबीआई के अकाउंट से जुड़ा रहता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव बैलेंस रहता है क्योंकि इसको हम आरबीआई से कोरिलेट करते हैं और ये ऑफिशियल रिजर्व या इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट को इंडिकेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई और इसलिए बैलेंस रहता है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव तब होगा जब एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा कम होंगे इंपोर्ट से, और पॉजिटिव तब होगा जब एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होंगे इंपोर्ट से। इट बैलेंस ओनली व्हेन, और बैलेंस तब होगा जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं विच कैन बी इजिली रिमेम्बर्ड बाय ऑल ऑफ अस, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड डैश अकाउंट ओनली, इस तरह से आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का लास्ट वीडियो के साथ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ, बैलेंस ऑफ चैप्टर खत्म हुआ। अगले क्लास से
हम लोग जो हमारा दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर से इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तब तक आशा है कि आप इसका नोट्स बना लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अब पूरा हो गया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स फेयर करके उसको रटना शुरू कर देंगे, उससे क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर देंगे। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।